हाँ देख के आइए। तो पूछना है यार, और सुनने तो दे। मैम सेंटर वाली लोग यार हो जाएगा तो बताना। मैम टर्न फॉर वीडियो। यहाँ पे मैम प्लीज प्लीज मैम 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 हेलो मैम नहीं हुआ टर्न फॉर वीडियो। प्लीज कम। हेलो। हाय हाय। हाय। सो देखा आपने द मैरिड वुमेन का ट्रेलर एंड अभी नहीं, मैं आज देखूंगी। ट्रेलर देखा है मैंने। I think it looks amazing. I'm really excited to see content like this in India. तो मैं बहुत excited हूँ और yeah, that's it. And what do you expect in the film? You know, the web space is changing so much and the content has become so incredible. I am expecting some terrific performances. Ekta Kapoor is always great at the show that she produces. My best friend Monica Dogra is in the show, so I'm excited to see her. मैं बहुत excited हूँ क्योंकि Monica है show में, Monica Dogra, और रिद्धि डोगरा ने भी बहुत अच्छा performance दिया है, मैंने सुना है, तो I can't wait to see both of them in this. you know tomorrow is 8th March. It's, Yes, it Women's is. Day. It's Women's Day. Yes. एंड वुमेन्स डे के मौके पर स्ट्रीमिंग हो रही है एंड डे बाय डे हम देख रहे हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स का दबदबा जैसे बढ़ते जा रहा है, सो कैसे देखती हैं? होना ही चाहिए, and I feel as though it's something that I mean, you know, I'm hoping that eventually we get to a stage where we won't have to celebrate Women's Day anymore because Women's Day will be every single day. So, this is the start. Okay, हमारे इसी के साथ में हाँ, एक और और एक और कोई अगर एक ऐसी वुमेन का अगर कोई आप नाम लेना चाहेंगे, बताना चाहें जिसमें आप अपनी लाइफ में जिसका सबसे ज़्यादा श्रेय मानती हैं, किस वुमेन का नाम लेना चाहेंगी जिसको आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे? in my life, Yeah. I mean, I think most people would say their mother. For me, that would probably be my mother. But I also have sisters. I also have a team of women that I work with, whether it's my 2 managers who are here with me, my makeup artist, my hairstylist, my stylist. So I'm surrounded by a lot of women, and I know that when we work together or when we just work in general, we have the power to just do such a great job and to just change so many things. शिवानी वुमेंस डे है तो आप कहीं ना कहीं आप वुमेन्स को हमेशा से रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा Sorry, miss, सुन नहीं पा रही। अब महिलाओं की बात आज हो रही है, वुमेंस डे है। कहा जाए पिछले साल जो आपकी दोस्त हैं हमेशा से चर्चा में बनी रही रिया, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, स्पेशली आप वुमेंस डे के मौके पर, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी बातें हुई और आप हमेशा से सपोर्ट करके आए रिया को। Well, I mean, I think it's a great day to acknowledge strong women. And I think that Ria has shown that she is someone that is a true soldier. So I do, on Women's Day, celebrate her and everything that she has stood for and everything that she continues to fight for. And I'm very proud of her and I have a lot of respect for her. साथ ही साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, बात हुई आपकी रिया से कुछ कैसी है? ये मैरिड वुमेन का शो का ये है क्या? की बात कर रहे हैं तो आप कुछ बताना कहना चाहेंगे? सवाल क्या था? कुछ बात हुई आपकी उनसे, कुछ कहना चाहेंगे उनकी तरफ से? No, just what I've said is all I care to say. Thank you. Hold few seconds here. Start on your left and right. Thank you guys. Thank you. Oh.
Hello. Hi. Come here, please. Yeah. Start on your left and right. Thank you. Thank you. Thank you. Vijay. Thank you. Saira ji, now यहाँ वीडियो के लिए प्लीज स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट वन बताओ यू ऑलराइट सो देखा आपने ट्रेलर द मैरिड वुमेन का एंड Of course, I'm very excited. Looks very fresh and very new, and I think best day to launch it is Women's Day, and it commemorates the lovely day that we have, and also it commemorates the beautiful feeling of love. By the looks of it, it says that we should not judge love based on gender or anything, and that's such a beautiful premise. So I'm very excited for everybody to see this. एंड टुमारो इट्स वुमेन्स डे एंड वुमेन्स डे के मौके पर स्ट्रीमिंग हो रही है एंड डे बाय डे जिस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स डे का दबदबा बढ़ा है तो कैसे देखती हैं आप जाहिर है आप मैं बहुत खुश हूँ सबको देखना चाहिए था बहुत पहले देखना चाहिए था अब देख रहे हैं बट इट्स नेवर टू लेट आई एम वेरी वेरी हैप्पी वी आर दी अदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एंड वी डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ताहिर, अगर बात की जाए काफ़ी लंबा वक्त रहा आपको भी आयुष्मान के साथ वक्त बिताने का, अगर बात की जाए सो कुछ उसके बारे में बताइए। काफ़ी लंबा वक्त रहा और बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। कोरोना वायरस का टाइम में कहाँ मिल लेती मैं आपको ये भी बताओ और आयुष्मान से क्या मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन कुछ मेमोरीज बता दीजिए अगर लॉकडाउन की अगर कोई मैं क्या मेमोरी बताऊँ ही इज़ शूटिंग ही इज़ अवे एंड I really wish he was here to watch the spectacular show that this lovely series is. शूट कर रहा है मज़े कर रहा है जब आएगा तो हम मिलेंगे What else? ताहिरा, जैसे कि वुमेंस डे आप भी इंडस्ट्री का हिस्सा हो, कहीं ना कहीं आपने भी इंडस्ट्री को दूर से ही देखा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि वुमेंस को एक अलग तरीके से हमेशा दिखाया गया है, या कहा जाए तो हमेशा से एक्टर्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया, मतलब कहा जाए एक पहचान मिली है वुमेंस को, कहीं ना कहीं उस लिहाज से पीछे रखा गया, उसको कुछ कहना नहीं ऑफ कोर्स पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा देश ही नहीं ये पूरा इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना वेयर men are given precedence over women. एक पेट्रियार्कल सेटअप है पर बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि यहाँ पर all of you are men from here to here and we are talking about this and you've come to cover this which means you're a part of the movement and I'm truly appreciative of the fact and it just goes on to show that we are at a better place and we still have a long way to go but the fact that you all are coming in support just shows that it's a good place that we can make to live in. So, thank you guys, thank you. Which way to go? Back? Okay, thank you.
सबसे पहले तो एकता जी कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। एंड जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है द मैरिड वुमेन का ट्रेलर, एंड जितने भी लोग यहाँ पर आए लोगों ने काफ़ी तारीफ की है। सो अब आप बताइए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? सी देखिए, मैंने एक्सपेक्टेशन अपनी 27 साल के करियर में रखना बंद कर दिया है। मैंने सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर मुझे कोई शो बहुत अच्छा लगता है या कोई कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा काम है उसे प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना। अब उन्हें पसंद आए नहीं आए उनका ये डिसीजन है, बट शो डेफिनेटली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई एम होपिंग दैट लोगों को पसंद आए। बहुत ही स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, बहुत ही रियल शो है। उसका पेस टिपिकल कमर्शियल शोज़ की तरह नहीं है, बट हर साल आपको तो पता है वी डू, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो LSD हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो जो टिपिकल कमर्शियल से अलग हो, वो करने का हम हर साल कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। फिल्म इस साल आ नहीं पाई, तो अभी डॉली किट्टी आई, अभी पगलेट आ रही है, और अब द मैरिड वुमन सारी नेट पे ही आ रही हैं। सो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट टू डू डिफरेंट कंटेंट, एंड आई होप लोगों को पसंद आए। इसी के साथ में ट्रेलर तो आ गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है ट्रेलर को, बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी ने आपको दिया हो? मुझे लोगों ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा गट्स लेते हैं लोगों को कि वुमेंस डे पे एक टू वुमेन रिलेशनशिप के साथ एक लव स्टोरी बेस्ड इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक टाइम हम ला रहे हैं। बट एक बुक थी जो बननी चाहिए थी, बहुत सालों से वो बुक थी, एंड इट वाज माय ड्यूटी कि मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाऊं हर साल जो शायद लोगों को पसंद आने से पहले मुझे पसंद आए। मुझे ऐसा लगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें सपोर्ट करने चाहिए। 8 ऑफ मार्च टुमारो, जैसा कि ये स्ट्रीमिंग है, एंड जिस तरह से वुमेंस डे के मौके पर स्ट्रीमिंग है, वुमेंस डे का हम देख रहे हैं, वुमेंस का जिस तरह से दबदबा हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है, आपका हम देखते हैं डे बाय डे हर साल जो है ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, ऑल्ट वाला जी का आपका। एंड कैसे देखते हैं आप इस इंडस्ट्री में जिस तरह से वुमेंस डे का दबदबा बढ़ता जा रहा मेरा तो ग्रोथ सच में बढ़ा जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स वी आर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम औरतों को बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम लेडीज स्टोरीज आती हैं। टेलीविजन इज़ ओनली मीडियम जहाँ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरीज आती हैं। वेब एंड मूवीज़ में बहुत कम स्टोरीज हैं जो अबाउट वुमेन हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम वी चेंज दैट इक्वेशन। अच्छा एकता जी, आपने जैसे कि कहा कि सेंसिटिव टॉपिक है, हाँ। तो लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर कोई प्रिकॉशंस लिए गए? और देखिए, थोड़ा सा देश का माहौल देखकर थोड़ा उसको सेंसिटिव ज़रूर बनाया गया है, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट एट द सेम टाइम जो शो का मुद्दा है, जो शो का टॉपिक है, इज़ अबाउट चॉइसेस, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन बुक। उस बुक को अगर मैं ज़्यादा चेंज करती तो उस बुक के साथ नाइंसाफ़ी होती। सो बुक का इसेंस पकड़ के ही हमने बनाया है। लोगों का रिस्पॉन्स अभी एज वी नो, कुछ भी अगर बोल्ड होता है, शॉकिंग होता है, या लोगों के जो सोच के अलग से होता है, वो जितना प्रशंसा उसे मिलती है उतनी क्रिटिसिज्म भी मिलती है। ये बात हमें पहले से पता है, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है और लोगों को कहानियाँ सुनने का शौक़ है, अलग कहानियाँ सुनने का शौक़ है, एंड आई एम होपिंग लोगों को ये पसंद आए। एकदम फाइनली थिएटर्स ओपन हो चुके हैं, कब, क्या आपकी फीलिंग है, कब आप अपनी फिल्म को थिएटर्स में उतारने वाली है? क्या कुछ आपके thoughts? हमने एक फिल्म तो अनाउंस कर दी है, एक विलन रिटर्न्स, जो अगले साल फेब्रवरी में वैलेंटाइंस डे, वी कॉलिंग इट वैलेंटाइंस डे को आ रही है, और आई एम होपिंग उसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आएंगी, और वील बी सेटिंग अप। बहुत टाइम हो गया है, यू नो, इट्स बीन टू टफ फॉर अ होल इंडस्ट्री, एंड कोशिश यही है कि इस साल भी हम कुछ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। ना यहाँ पर थोड़ा सा विजुअल स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट। Hi, hi, hi. How are you doing? Yeah, of course. How are you? Good, good. I just What's came happening? back shooting a film called Thar Wow. with Fatima and Dad for Netflix. Yeah? And yeah, I have this film that Vasan Balavi called Spotlight coming out in May as part of the Ray anthology. Oh, fantastic. Oh, that's also in there on Netflix. Yeah, yeah. Oh, so you're doing both of them.
So they're both complete. So shot them during the lockdown and now set to look forward to the releases. So Fantastic. Congratulations. pretty cool, very exciting to see. Come Yeah, to come. And Harsh, you continue, take the mantle. I'll see you in I'll see you. Okay. From there, sorry. Sorry. ऑलराइट तो सर आपने देखा ट्रेलर द मैरिड वुमन का? Yeah, I'm just talking to Ekta about it. Really looking forward to it, and it's quite progressive, I think, and bold to tell a story like this. And I think it's a great time to talk about these things, and I'm really looking forward to watching the show. बहुत ही गहरी बातें हमें देखने को मिलेगी यू एंड एकता जी की। सो ऐसे आने वाले दिनों में क्या हम ऐसे एसोसिएशन देखेंगे यू एंड एकता ऑल्ट वाला भी, आप बताइए। I don't know, So so Riya has worked with Ekta in the past, and they have a very good relationship. But I haven't spoken to Ekta about any work-related stuff. It's more we're just family. We know each other, and that's. तो 2021 की शुरुआत हो चुकी है, साल के लोगों को इस साल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर कुछ बता सकें कि इनमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? Yeah, so I have two films coming out that I've completed shooting for. One is directed by Vasan Bala. It's part of an anthology called Ray that Netflix just announced, and the film is called Spotlight. And Radhika Madan is in it, and Chandan Roy Sanyal is in it, and it should be out sometime in May, I think. So we finished shooting that in October, and then I shot a film called Thar with Fatuma Sana Sheikh, Dad Anil Kapoor is in it, Satish Kaushik is there, Mukti Mohan is there. So it's quite a big film, and it should be out, I think, towards the end of the year. So principal photography on both those films is complete. Spotlight's a comedy, and Thar is a thriller drama. So two releases to look forward to, and obviously AK vs AK just came out. So these three films. अब जैसा कि आपके कैरेक्टर को या जो आप हमेशा से पसंद किया है, हमेशा क्रिटिकली कहा जाए, क्रिटिक्स की तरफ से कहा जाए, ऑडियंस की तरफ से हमेशा पसंद किया है, वो धमाका नहीं अपकमिंग प्रोजेक्ट Yeah. क्या थॉट प्रोसेस आप साथ लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि एक रिस्क होता है, एक डर होता है, Well, the two films that are coming out now are Netflix films. So there's no conversation of the box office anyway. I think that's the beauty of making things for these platforms is you don't have to stress about the numbers, because I've always believed that the box office is not a direct reflection of the quality of the film, but it's more about a consumer's desire to want to consume the film. Right? So for example, you might see a restaurant that you really want to eat at, but once you go there, you realize the food is not very good. But by the time you've got there, you've already eaten the food and paid the bill, so it's too late. But
On the other hand, you might see a restaurant, it doesn't look so nice from the outside, but you go, your friends go and they say the food is really good. And then people keep going back. So there's two ways to look at success, and I think for me, Bhavesh Joshi is a very successful film. Just because people didn't go to the theaters doesn't mean that it's not a quality film. I think a quality film has longevity. I think it has recall value. I think it gets more relevant as time goes on. So when I choose a film, I don't choose a film saying that, oh, I'm going to do this film now and I'm going to become a big star. That's never really been my thing. And so I do passion projects, and Bhavesh Joshi is a passion project, AK versus AK is a passion project, Ray Spotlight is a passion project, Thar is a passion project, and eventually I will come back to theatres with the Bindra biopic. And if that's supposed to do well, it will. If it's not, then it won't. But I don't lose sleep over box office, and I think the world has changed completely in the last year and a half. Nobody expected the pandemic. Nobody expected the impact that was going to have on cinemas. And now I think when audiences go back to cinemas, there will be a little bit of a change in the palette, at least for our urban audiences. And I'm just looking forward to the films, and let's see how people like them on these platforms. Thank you so much. Thank you. Yeah. That's it. Cheers.